ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ اور قصور میں سردی کی آمد کے ساتھ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 226 تک پہنچ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں میاں کاشف سے۔ جی شکریہ۔ بات کی جائے تو پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح قصور میں بھی کئی دنوں سے جاری شدید گرمی کی جو کمی ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ہر نئے دن کے ساتھ جو ہے وہ موسم جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ سردی کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ صبح کے اوقات اور رات کے اوقات میں جو ہے وہ واضح سردی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو درجہ حرارت ہے محکمہ موسمیات کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قصور انتظامیہ کی نااہلی اور لاپرواہی کے باعث قصور میں جیسے جیسے سردی کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ویسے ہی سموگ کی شدت بھی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب بات کی جائے تو ہسپتالوں میں بھی جو ہے سموگ کے باعث شہریوں کا مریضوں کا رش جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور فضائی آلودگی میں قصور میں جو ہے وہ دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بات کی جائے تو فصلوں کی باقیات اور دیگر جو انڈسٹریز ہیں جو کہ سموگ کا سبب بنتی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں، جو کہ سموگ کا سبب بن رہی ہیں، لیکن انتظامیہ قصور محکمہ ماحولیات مکمل طور پر خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ جی عبدالحکیم میں پولیس کی جانب سے کھلی کچہری کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کا تھانہ عبدالحکیم میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری میں آئے ہوئے شہریوں سے فردن ملاقات کر کے مسائل دریافت کیے۔ مزید جانتے ہیں رجب علی بھٹی سے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے تو آج عبدالحکیم میں ڈی پی او خانیوال کی جانب سے جو ہے کھلی کچہری لگائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان کے مطابق ڈی پی او خانیوال کی جانب سے جو کھلی کچہریوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، آج عبدالحکیم میں بھی لگائی گئی ہے۔ ڈی پی او صاحب میرے ساتھ موجود بھی ہیں۔ سر آپ کیا بتائیں گے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلسل آپ کا جو روٹین ہے اس میں آپ یہاں پہ کھلی کچہری لگا رہے ہیں۔ یہاں سے تقریباً میرے خیال میں 60-70 کلومیٹر خانیوال سفر بھی تھا، یہاں سے لوگوں کو جانے میں دشواری بھی ہوتی تھی، آج لوگوں کو دلیز پہ ان کو انصاف بھی مل رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا بتائیں؟ جی یہی ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ جو کھلی کچہریاں پولیس اسٹیشنز میں، دیہاتوں میں، مساجد میں لگائی جائیں، جیسے کہ ویژن ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا، کہ پبلک کے پاس جائیں نہ کہ ان کو بلائیں اپنے پاس۔ اور اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہے ورکنگ میں کہ ہمارے پاس جو کمپلیننٹ نے اتنی دور، جیسے آپ نے خود فرمایا 60-70 کلومیٹر سفر کر کے ڈی پی او آفس آئے اور وہاں ملے، ہم خود ان کو مل کے جائیں، اور یہاں سارے موجود بھی ہیں، یہاں ایس ایچ او صاحب بھی ہیں، ڈی ایس پی صاحب بھی ہیں، ہم سارے اکٹھے بھی ہیں، تو صلاح بھی کر لی ان سے، ان کا فیڈ بیک بھی لے لیا اور موقع پہ احکامات بھی دے دی۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ڈی پی او صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کھلی کچہری جو لگانے کا سلسلہ ہے وہ اس ٹائم جاری ہے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی سنے جاتے ہیں اور ان کو موقع پر حل بھی کیا جاتا ہے۔ آل پاکستان گوڈز ایسوسی ایشن کی کال پر بہاولپور کی تحصیل منڈی یزمان میں بھی گوڈز ٹرانسپورٹ ٹرک ایسوسی ایشن نے پیٹرولنگ پولیس، ٹریفک پولیس اور ایکسائز محکمہ کے خلاف پہیہ جام ہڑتال کی ہے۔ ٹول ٹیکس کی واپسی، ناجائز چالان، جرمانے اور رشوت خوری کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ یزمان گوڈز ٹرانسپورٹ کے عہدیداران نے احتجاج کے دوران کہا کہ پیٹرولنگ پولیس، ٹریفک پولیس، محکمہ ایکسائز اور ٹول ٹیکس کی وصولی، ان کی شرنگیزی، ناجائز چالان، جرمانے، بھتہ وصولی اور بدمعاشی سے گوڈز ٹرانسپورٹ کو نجات دلائی جائے، ورنہ پہیہ جام ہڑتال کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ گوڈز ٹرانسپورٹ کے عملہ نے دوران احتجاج کہا کہ ہم پیٹرولنگ پولیس، ٹریفک پولیس، محکمہ ایکسائز کی بھتہ وصولی سے تنگ آ چکے ہیں۔ بھتہ نہ دینے کی صورت میں ہمارے ٹرک تھانے میں بند کرا دیے جاتے ہیں اور ہمیں تشدد، مار پٹائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گوڈز ٹرانسپورٹ نے درج بالا محکمہ جات کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور بینر کتبے بھی اپنے مطالبات کے ساتھ اٹھا رکھے تھے۔ پنجاب کے بعد رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ سوابی میں ٹرانسپورٹرز کا موٹر وے، ایل پی جی اور سی این جی گاڑیوں کی بندش کے خلاف احتجاج۔ ٹرانسپورٹر نے جمعہ کے دن موٹر وے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ احتجاج اس وقت جاری رہے گا جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ موٹر وے امبار انٹرچینج میں موٹر وے پولیس کو ہٹایا جائے، موٹر وے پر گاڑیوں کی آمد و رفت کی اجازت دی جائے، موٹر وے پر گاڑیوں کی اجازت نہ دینے پر کرایہ 1000 روپے تک بڑھا دیں گے۔ کہا کہ کرایہ بڑھانے سے سارا بوجھ عوام پر پڑے گا۔ تورگھر کے علاقہ تلی سیدان میں نامعلوم ملزمان نے جماعت نہم کے طالب علم کو نامعلوم افراد نے تشدد کے بعد گلے میں پھندا ڈال کر قتل کر دیا اور لاش مقامی اسکول کے عقب میں پھینک کر فرار ہو گئے۔
पुलिस के मुताबिक थाना दरबनी पुलिस ने ओगी कैटेगरी डी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। पुलिस ने बताया कि तालिब इल्म कामरान हफ्ते के रोज घर से लापता हुआ। आज उसकी लाश मुकामी स्कूल के अकबी साइड से बरामद हुई, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गले में फंदा डालकर बेदर्दी से कत्ल किया गया था। मकतूल तोरगर पुलिस के कांस्टेबल सैयद रज़ाक शाह का बेटा था। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान का सुराग कत्ल के पसपर्दा मुहर्रिकात सामने लाने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब रुख करेंगे सिंध का। नवाबशाह में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछलियों की फरोख्त में इजाफा हो गया, मगर दूसरी जानिब मछली फरोशों ने मछलियों की फी किलो कीमत में मनमाना इजाफा शुरू कर दिया। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटी और जिला इंतजामिया से फौरी नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद कुरैशी से। जी बिल्कुल, नवाबशाह में भी मौसम की तब्दीली के साथ ही नवाबशाह में भी दिगर मकामात में मछली के स्टॉल लग गए। स्टॉलों पर तरह तरह की दरिया सिंध की और समंदर की और फार्मों की मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ आ गई हैं। मछलियाँ जो हैं सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और शहरी दूसरी जानिब बहुत बड़ी तादाद में शहरी मछली ख़रीदने के लिए आ गए हैं और शहरी दुआएँ देते हुए नज़र आए कि जी मछलियों के जो रेट हैं बहुत ज़्यादा हैं। आइए हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे जानते हैं उस बारे में क्या कहते हैं। जी, मौसम की तब्दीली की वजह के साथ जब मछली लेने के लिए हम यहाँ हैं तो मछली जो कहना हमें बहुत महंगी है। मछली एक तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, दिल के मरीज़ों के लिए और उसके लिए इसमें तमाम किस्म के विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन जब मछली ख़रीदने के लिए हम स्टॉल पर गए तो रेट सुन के हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि इतनी ज़्यादा हाई रेट। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि मछली के रेट्स को कम करके ये गरीब अवाम की पहुँच तक रसाई की जा सके। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि मछली के फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं और गरीब आदमी जब मछली लेने के लिए बाज़ारों में आया है तो उसके रेट बहुत ज़्यादा हैं और शहरियों ने ज़िले हुकूमतों से और वफाकी हुकूमतों से मुतालबा किया है कि मछली के रेट को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी भी मछली खा सके। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस दादू के शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने परेशान कर रखा है तो दूसरी जानिब गैस की जगह इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां भी महंगी होने के बायस खरीदना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं मुबीन पहनोर से। जी, दादू में भी जो है गैस के जो कम प्रेशर की वजह से शहरी सख्त परेशान हैं और मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं तो उनका क्या कहना है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं बगैर नाश्ते के जाते हैं और इसी गैस की वजह से इसका जो अल्टरनेट है लकड़ियाँ, वो जो हम लेने जाते हैं उनके दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो दाम आसमानों पे पहुंच गए हैं। तो एक तो मुतालबा है ये कि सही जो टाइम है वो लोड शेडिंग का सही टाइम जो है वो मुकर्रर किया जाए, उसके अलावा प्रेशर सही किया जाए और उसके अलावा रेट कम किया जाए। जो ज़रूरी बात यही है कि रेट कम किया जाए। इनका मुतालबा हुकूमत से था कि प्रेशर जो है इसका गैस का बढ़ा दिया जाए और जो रेट बढ़ा दिए गए दाम जो है वो कम कर दिए जाए और लकड़ियाँ जो हम लेते हैं वो भी इनके बराबर हो गई हैं तो हमारे को गैस से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जी, सखर के मसरूफ तरीन इलाके की सड़क पर हालिया बारिशों के बायस गड़े पड़ गए, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। लेकिन इंतजामिया घड़ों की मुरम्मत के बजाय दूर भागती नजर आ रही है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। मजीद जानते हैं पराग शर्मा से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग सखर की मसरूफ तरीन सड़क 100 फुट रोड पर मौजूद हैं, जो कि हालिया बारिशों में इधर बड़ा गड़ा पड़ गया था। मेरा कैमरामैन गुलाम मुस्तफा शेख आपको दिखाएगा। ये आप गड़ा दे सकते हैं, तकरीबन 10 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा गड़ा, जो कि एक बहुत ही बड़ा हो चुका है और गुज़िश्ता 2 माह से ये गड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये जो है सड़क यहाँ से बाईपास तक ये कवर करती है और ये मसरूफ तरीन इलाका जो यहाँ के जो इलाका मक्कीन है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ये जो रेती है कचरा है वो साइड में डाल दिया है ताकि कोई मजीद यहाँ पर हादसात ना हो और लोग भी जिसके बाद सख्त परेशान है। जी, कबूस सईद खान की अहम शाहराह M8 मोटरवे गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। रोड का तामीराती काम मुकम्मल न होने की वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा है। कौमी शाहराह का मुरम्मत न होने के बायस रोड पर हादसात रोज़ के मामूल बन चुके, जबकि एमरजेंसी में अहले इलाका के लोग शदीद मुश्किलात का
सामना करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अजहर खोसो से। शुक्रिया। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली जो कौमी शाहराह अहमद मोटरवे रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो गुज़िश्ता 9 साल से जो है खस्ता हाली का शिकार है। इस रोड का टेंडर जो है मकामी ठेकेदार को दिया गया है, जिसके बायस जो है काम ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। ये वो वाहिद रोड है जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो MNAs और MPs की अदम तवज्जो के बायस यहाँ पे जो मिनटों का जो सफ़र है वो घंटों पे तय होने लगा है। मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि इस रोड में फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से जो एमरजेंसी की सूरत में मरीज़ों को जो है शदादकोट, लाड़काना और दीगर जगहों पर जो है मुंतकिल किया जाता है। रोड की फैसिलिटी ना होने की वजह से वो रास्ते पर ही दम तोड़ जाते हैं। यहाँ पर MNAs और MPs की अदम तवज्जो है कि शहरियों से जो बुनियादी हक़ हैं, अगर बात करें MNAs की और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदादकोट की इस चीज़ पर कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ के अहले इलाका के लोगों ने MNA खुर्शीद अहमद जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा किया कि खुदारा इस चीज़ पर नोटिस ली जाए, जो रोड की फैसिलिटी है वो आवाम तक जो है मैसर हो सके। जी, टंडवाला यार्ड में आवारा कुत्तों की बहुतात के साथ साथ सिविल अस्पताल में कुत्ता काटने की वैक्सीन गैर मुयसर होने पर 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। वरसा के मुताबिक सिविल अस्पताल से कुत्ता काटने की वैक्सीन भी कराई गई थी, मगर वैक्सीन कराने के बावजूद कुछ रोज कबल दोनों अफराद में असरात जाहिर होने लगे, जिसके बाद दोनों अफराद को पहले हैदराबाद और बाद में कराची अस्पताल में एडमिट कराया गया, मगर दोनों अफराद दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हार गए। और आप रुख करेंगे बलोचिस्तान का। लोरालाई में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शबुज़ई में सालाना स्पोर्ट्स वीक का इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई है। तकरीब के चीफ गेस्ट लोरालाई स्कोर्ट्स मेजर अब्दुल बासित थे। चीफ गेस्ट ने रिबन काट कर सालाना स्पोर्ट्स वीक का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर स्कूल स्टाफ और तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौका पर असातिज़ा और तलबा ने म्यूजिकल चेयर गेम और रस्साकशी के मुकाबले किए। चीफ गेस्ट का कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। स्कूल स्टाफ की जानिब से आए हुए मेहमान में शील्ड्स भी तकसीम की गई। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद माहौल का होना जरूरी है। इसी हवाले से तहसील पटाखा में स्पोर्ट्स प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा स्कूल्स के बच्चों ने शिरकत की, जहां खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलाजात करवाए गए। मजीद जानते हैं हाशिम आवान से। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज पटेका में जो है वो एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है वो खेलों के हवाले से जो है वो प्रोग्राम मुनक़्क़द किए गए, जिसमें क्रिकेट, रस्साकशी और दीगर जो खेल थे वो पेश किए गए बच्चों की जानब से। तहसील पटेका के जितने भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल थे वो उनके बच्चों ने यहाँ पर जो है वो इस तकरीब में जो है वो हिस्सा लिया। इसी हवाले से मेरे साथ हम मौजूद हैं मेरे तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक़ वज़ीर हुकूमत महकमा स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर मोहतरमा सदर शेख साहिबा। इन सरगर्मियों की अहमियत और अक़दामात के हवाले से इनसे बात करेंगे। ये क्या कहेंगी? बच्चे जो है मोबाइल और दूसरी सरगर्मियाँ छोड़कर खेल की तरफ आएँ, और खेल से एक सेहतमंद माशरा कायम होता है। हमारे बच्चे जो है ना जितना खेलें कूदेंगे और वो पढ़ेंगे भी, क्योंकि वो अगर आपकी बॉडी और आपका दिमाग जो है वो फ्रेश है तो आप पढ़ने में भी उसमें भी आप अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करेंगे, आपका दिल करेगा कि मैं पढूं। और आज का जो दिन था मेरे ख्याल से मुझे तो सबसे बड़ी खुशी हुई कि बच्चियां हमारी स्पेशली कि वो घरों से उनके वालिदैन ने उनको परमिशन दी, वो आई और उन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया। मैं कहती हूँ कि इस तरह के इवेंट और इस तरह का चीज़ें जो है ना कि बल्कि साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर होने चाहिए। जैसे आपने सुना मेरे साथ मौजूद थी साबिक़ वज़ीर हुकूमत मोहतरमा सदर शेख साहिबा का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी ज़रूरी हैं, जिससे जो है वो तलबा जो है वो फ्रेशनेस महसूस कर सकते हैं। जी, कोटली में मरकज़ी रहनुमा साबिक़ सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज़ खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से 23 अरब रुपए की खतीर रकम की फौरी मंजूरी के बाद रियासत के अवाम को 3 रुपए यूनिट बिजली और 2000 रुपए मन आटा मिल रहा है। यह सहूलत पूरे पाकिस्तान में किसी जगह में असर नहीं, जिस पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके इक़दामात के बदौलत आज़ाद कश्मीर के अवाम को खातिर खा हद तक फ़ायदा पहुँचा है। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल अवामी मुतालबात के हवाले से तहरीक का आगाज़ हुआ तो मैंने इन मुतालबात को जायज़ करार दिया।
اب جبکہ بڑے مطالبات منظوری کے بعد ان کے ثمرات سے عوام مستفید ہو رہے ہیں، تو ایسے میں آزاد کشمیر کے یوم تاسیس کے موقع پر احتجاج کی کال آباء و اجداد کی قربانیوں سے انحراف کی کوشش ہے۔ یوم تاسیس کے علاوہ احتجاج کے لیے کوئی بھی تاریخ رکھی جا سکتی ہے، یہ قومی دن ہے، کوئی محب وطن شہری اس دن کے موقع پر احتجاج کی کال کو قبول نہیں کر سکتا۔ پانیولہ کے علاقے چنڈالہ میں لگایا گیا 3 روزہ پیر پنجال پہاڑی میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ میلے میں کشمیری ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ میلے میں پرانے وقتوں میں استعمال ہونے والی گھریلو استعمال کی اشیاء، جن میں مٹی کے بنے برتن، کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے اوزار، زمانہ قدیم کے کرنسی، تلواریں، رائفلیں اور دیسی کھانے، ثقافتی شوز لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ میلے میں اسکول کالجز کے طلبہ و طالبات اور عوام کی بھرپور شرکت۔ طلبہ نے مختلف سٹال بھی لگائے۔ یہ جو میلہ لگا ہے بالکل بہت ہی بہترین، اس میں جتنی چیزیں ماشاءاللہ سے نئی جو پرانی چیزیں تو وہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پرانی ثقافت ہماری بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ مر گئی ہے ایک طرح سے۔ تو یہاں پہ ابھی ہم گئے اندر، دیکھی ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی جو پرانی تھی اور وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اچھی لگی۔ اسی سلسلے میں گرلز انٹر کالج جنڈالہ کا سٹاف یہاں پرنسپل کے ہمراہ سٹاف اور طالبات یہاں جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمارا اپنے ایک کالج کی طرف سے ایک سٹال لگایا ہے جس میں دیسی چیزوں کی اور ہینڈ میکنگ چیزیں بنائی گئی ہیں، یہاں پر لگائی گئی ہیں۔